Now students, I am starting the fourth question of exercise 8.2, in which three questions we discussed in the last video. So the given fourth question is ABCD is a trapezium. The structure is already given in the book. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD, BD is a diagonal, and E is the midpoint of AD. E is the midpoint of AD. So BE is equals to EA. A line is drawn through E parallel to AB. E से एक लाइन ड्रू की गई है जो AB के पैरेलल है, means these all are parallel to each other. Intersecting BC at F. BC at F. Prove that F is the midpoint of BC. हमें ये प्रूव करना है F is also the midpoint of BC. मैं इसको G पॉइंट ले लेता हूँ, इस पॉइंट को. सिंपल क्वेश्चन है, वही मिड पॉइंट पे बेस्ड रहेगा जो अपन ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस में. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट what things are given. ABC in trapezium ABCD, AB is parallel to CD, E is midpoint of, या फिर ये भी लिख देता हूँ AB parallel to CD and is parallel to AF. सभी एक साथ ही कर EF is parallel to AB and AB parallel to CD. E is midpoint of AD. क्लियर है बात यहाँ तक? अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट F is midpoint of BC. F is midpoint of BC. ये हमें प्रूव करना है. अब इसके प्रूफ की बात करें, प्रूफ कंस्ट्रक्शन कंपलसरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, ट्रायंगल बिल्डअप हो रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेलेक्टिंग ट्रायंगल DAB. फ्रॉम ट्रायंगल DAB, look here, in this triangle E is midpoint. E is a midpoint of AD. Clear? This thing is given already in the question. And one more thing is here, which is EG parallel to AB and EG parallel to AB. Therefore, I am applying here the converse of midpoint theorem. According to this theorem, if this is the midpoint and this is parallel to this one, then this point is also the midpoint of DB. Clear है? So by converse of midpoint theorem, NPT. Clear? यहाँ से हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ से रिजल्ट मिलेगा, देखो, Z is also the midpoint of BD. बात समझ में आ गई? बस इतना सा था, ये ज़्यादा कुछ नहीं करना था कि G क्या हो गया, BD का मिड पॉइंट हो गया, लेकिन हमें F को मिड पॉइंट प्रूव करना है. अब चलो वापस आओ अगेन. In triangle BCD, look here, G is midpoint of BD. G is the midpoint of BD and GF, देखो ये कंप्लीट इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो GF इज पैरेलल टू DC होगा. GF is parallel to DC. So by same concept I am applying here, converse of
midpoint theorem. What we can say, f will be the, f is also the midpoint of BC, hence true. सिंपल क्वेश्चन था, स्टेप्स भी इजी हैं और सिमिलर क्वेश्चन अपन ने पहले भी सॉल्व किए हैं, तो ये इजीली हो जाएगा. आई होप सो यू अंडरस्टूड. नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा हमें, एक स्ट्रक्चर दे रखी है. ABCD is a parallelogram. ये लग रहा है ना पैरेललोग्राम जैसा? नहीं लग रहा. ABCD is a पैरेललोग्राम. अब ठीक है, ये मान लेना पैरेललोग्राम, ये भी ना लगे तो भी. इन विच, पहले तो ABCD डिनोट कर लेते हैं, ABCD. In which E is the midpoint of AB, E is midpoint of AB, and F is midpoint of BC. ध्यान से CD, F is midpoint of CD. इनको ज्वाइन करवाया गया है कुछ इस टाइप से, और ये डायगोनल है BD, ये पॉइंट है P, एंड दिस इज द पॉइंट Q. अब देखो मैं वापस से प्रोनाउंस करता हूँ. E and F are the midpoint of AB and CD. Prove that line segment AS, prove that line segment AC, AF and EC trisect the diagonal BD. हमें क्या प्रूव करना है, ये जो AF है और CE या फिर EC है, इस BD डायगोनल को ट्राइसेक्ट करते हैं, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट तीनों क्या है, इक्वल है. ये हमें प्रूव करना है. तो पहले हम लिखते हैं given that in parallelogram ABCD, E and F are midpoints of E is the midpoint of AB and F is the midpoint of CD respectively. ठीक है, यहाँ तक हमें प्रूव क्या करना है. AF and EC trisect BD means DP is equals to PQ is equals to Q. ये हमें प्रूव करना है. हमें क्या प्रूव करना है, DP is equals to PQ, DP is equals to PQ is equals to QB. This statement we have to prove. प्रूफ की बात करते हैं अपन. मैं देखो एक तो ये ट्रायंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है. फ्रॉम ट्रायंगल DQC, फ्रॉम ट्रायंगल DQC से क्या मिलेगा हमें, F इज मिड पॉइंट ऑफ DC. एक तो ये ट्रायंगल ले रहा हूँ और साथ में ये भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखो ये वाला, एंड ट्रायंगल BAP, एंड ट्रायंगल BAP. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. देखो F इज मिड पॉइंट ऑफ CD, F एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ F is midpoint of CD, midpoints of CD, and E is the midpoint of AB and AB respectively. क्लियर. सेकेंड थिंग ध्यान से देखना, FP इज पैरेलल टू CQ. FP कॉमा AP इज पैरेलल टू CQ एंड EQ इस ट्रायंगल में देखो EQ इज पैरेलल टू AP. FP एंड EQ आर पैरेलल टू, FP किसके पैरेलल है, FP इज पैरेलल टू CQ कॉमा एंड EQ इज पैरेलल टू AP.
रेस्पेक्टिवली। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखो मैं स्टेटमेंट को वापस से एनालिसिस करते हैं। मैंने ये लिखा है फ्रॉम ट्रायंगल डी सी क्यू या फिर डी क्यू सी, ये लिखा है फ्रॉम ट्रायंगल डी क्यू सी। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड पी एफ इज पैरेलल टू सी क्यू। सो बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से अपन क्या बोल सकते हैं, ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल, तो P क्या होगा, P इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ DQ। बात समझ में आई, P इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ DQ। सेकेंड बात करूंगा, देखो इस ट्रायंगल में आओ, ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल, तो Q भी तो मिड पॉइंट हो गया इसका, Q तो देखो इसका मिड पॉइंट होगा Q, और P मिड पॉइंट होगा इसका। बात समझ में आई, तो P इज अ मिड पॉइंट ऑफ DQ एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP। तो मैं यहां लिख रहा हूं P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ एंड Q किसका मिड पॉइंट है, BP रेस्पेक्टिवली। ये देखो अलग अलग करते हैं, मैंने एक साथ कर दिया बस। अब चलिए P मिड पॉइंट होगा DQ का, तो मैं यहां से लिख सकता हूं DP इज इक्वल्स टू PQ। सो DP इज इक्वल्स टू PQ। लेट्स सपोज इट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड और Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, तो यहां से लिख सकते हैं अपन PQ इज इक्वल्स टू QB, PQ is equals to QB. Let's suppose this is the equation number second. So from equation first and second, equation first and second देखो DP is equals to, पहले PQ ले लेता हूँ, PQ या फिर DP is equals to PQ, DP is equals to PQ, but PQ is equals to QB, so PQ is equals to QB. Therefore we can say that what we can say that AF and EC trisect BD, और जो कि हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। बात समझ में आई, तो ये अपना सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 4th का और 5th का। सपोज दिस एंड नोट इट डाउन। नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। Okay students, now I am starting the next 6th question of the exercise is 8.2, which is given that show that the line segments joining by the midpoint of the opposite side bisect each other। मतलब हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है और इसमें ये पूछा गया है show that the line segments joining by the midpoint of opposite side of a quadrilateral। तो opposite side of a midpoint की बात करते हैं, तो ये midpoint है, मान लो let's suppose this is a quadrilateral ABCD is any quadrilateral and P, Q, R, S are the midpoints of each and every side। After joining the midpoint of the opposite sides, हमें एक तो ये लाइन सेगमेंट मिलेगा और एक ये लाइन सेगमेंट मिलेगा। लेट्स सपोज दीज आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट T। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों म्यूचुअली बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स हमें ये प्रूव करना है PT विल बी इक्वल्स टू TR एंड ST इज इक्वल्स टू TQ, ST एंड TQ आर इक्वल, PT एंड T आर इक्वल। बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम मेंशन करते हैं क्या दे रखा है हमें, गिवन दैट in quadrilateral ABCD P, Q, R and S are midpoints of
midpoints of AB. P of AB. Q is the midpoint of BC. R is the midpoint of CD. And S is midpoint of AD रेस्पेक्टिवली. अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है, और लास्ट में ये लिख देता हूं, T इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ PR एंड SQ. ठीक है यहां तक? चलिए अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव PT इज इक्वल टू TR एंड ST इज इक्वल टू TQ. These two things we have to prove. अब इसमें कंस्ट्रक्शन हो, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बन रहा. कंस्ट्रक्शन जॉइन BD, ठीक है, एंड AC ऑल्सो. अब ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? ये कंपल्सरी नहीं कि T पे गिरे, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं. ये पॉइंट T जॉइन AC एंड BD. ये हमने कंस्ट्रक्शन प्रूव कर दी है. और जो साथ में और भी करता हूं, ज्वाइन AC BD कॉमा PS को भी ज्वाइन कर दो, PS PQ को भी ज्वाइन करवा दो, PQ join these both also, QR and RS. ये खिचड़ी बन गई है यहाँ पे, लेकिन समझना. ठीक है, अब चलते हैं प्रूफ पे. फ्रॉम ट्रायंगल ADB. क्लियर? फ्रॉम ट्रायंगल ADB. ध्यान से सेलेक्ट कर लो अपने माइंड में, ADB. देखो, S मिड पॉइंट ऑफ AD, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB. तो मैं लिख रहा हूं P and S आर मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ P किसका है? AB, एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो दोनों मिड पॉइंट हैं, तो मैं यहां पे मिड पॉइंट हम यूज कर रहा हूं, तो लिख सकते हैं अपन SP इज पैरेलल टू DB. सो यूजिंग मिड पॉइंट थियरम, कन्वर्जली मिड पॉइंट थियरम, क्या होगा? PS और SP, PS लिख देता हूं इज पैरेलल टू BD, PS इज पैरेलल टू BD. ठीक है, यहां तक? सिमिलरली ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल CBD, इन ट्रायंगल CBD में क्या होगा? QR इज पैरेलल टू BD. इसको मैं QR इज पैरेलल टू BD. बात समझ में आए? अब देखो यहां से PS इज पैरेलल टू BD, QR इज पैरेलल टू BD. तो देन दोनों पैरेलल है म्यूचुअली, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों तो पैरेलल होंगे ना. तो मैं लिख सकता हूं यहां से PS इज पैरेलल टू QR. क्या लिखा मैंने? PS इज पैरेलल टू QR. एंड इन ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल सेलेक्ट कर लो, BAC. इन ट्रायंगल BAC ध्यान से देखना, यहां से PQ पैरेलल होगा AC के, PQ इज पैरेलल टू AC, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो गया? मिड पॉइंट थ्योरम से पैरेलल.
एंड इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, DAC, DAC में देखो होगा RS इज पैरेलल टू AC, बोल दो इसको, RS इज पैरेलल टू AC, ठीक है। तो यहां से क्या स्टेटमेंट बनेगा, देन PQ इज पैरेलल टू AC, RS इज पैरेलल टू AC, तो ये भी तो दोनों पैरेलल होंगे ना, PQ इज पैरेलल टू RS। बात समझ में आई? अब देखो ट्रायंगल, इस क्वाड्रिलेटरल में आ जाओ, PQRS में, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS both the pairs of opposite sides are parallel। बात समझ में आई? In quadrilateral PQRS both the pairs of the opposite sides are parallel, therefore PQRS is a parallelogram। PQRS क्या बना? पैरेललोग्राम बना। अब देखो ये तो PQRS में PR and QS are the diagonals of PQRS, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ये मैंने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन किया था। एंड वी नो दैट diagonals of any parallelogram bisect each other। है ना? तो यहाँ पे PR और QS जो वो PQRS के डायगोनल्स हुए, देयरफॉर PT PR है, ये PT नहीं है, PR एंड PQ PR एंड QS bisect each other। और इसको मैथमेटिकली लैंग्वेज में यदि अपन लिखना चाहें तो PT इज इक्वल्स टू TR एंड QT is equals to TS, hence true। So this is the solution of the question number 6। Okay student, I hope so you understood। Now I'm starting the next question, 7th। So before that, pause the video and note it down। Question number 7th is ABC is a right angle triangle at C। देखो 7th क्वेश्चन में दे रखा है एक कोई ट्रायंगल है ABC जो राइट एंगल है और किस वर्टेक्स पे C पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ABC is a right angle triangle at vertex C। A line through the midpoint M of hypotenuse। इसमें hypotenuse क्या होगा? AB होगा, इसका कोई मिड पॉइंट है M, और यहाँ से कोई लाइन CB के पैरेलल ड्रॉ की जा रही है इस टाइप से, ठीक है, ये लाइन है। इंटरसेक्ट AC एट पॉइंट B, BC के पैरेलल है, इंटरसेक्ट हाइपोटेनियस पैरेलल टू BC, इंटरसेक्ट AC एट पॉइंट D। हमें जो प्रूव करना हो बाद में देखते हैं, पहले तो हम लिखते हैं क्या क्या दे रखा है। गिवन दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, in right angle triangle ABC, M is the midpoint of
M is the midpoint of AB and MD is parallel to BC. ये स्टेटमेंट हमें दे रखा है, बात समझ में आई यहाँ तक? हमें जो प्रूव करना है, what we have to prove, D is midpoint of AC. D is a midpoint of AC. First thing is this. Second, MD is perpendicular to AC. MD is perpendicular on AC. Third, CM is equals to MA is equals to half of AB. These three things we have to prove. Clear? अब देखो स्टेप बाय स्टेप अपन करते हैं. एक तो हमें प्रूव करना है D इज मिड पॉइंट ऑफ AC. D AC का मिड पॉइंट होगा. ये जो एंगल होगा कौन सा? MD इज परपेंडिकुलर. MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, मतलब इनमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, या ये होगा तो ये भी 90 का होगा, ये 90 तो ये भी 90. CM इज इक्वल्स टू MA. CM को हमें MA के इक्वल प्रूव करना है, मीन्स इसको ये वाले CM इज इक्वल्स टू MA, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए और ये जो है वो इसका हाफ होना चाहिए. ये तो हो जाएगा हाफ तक. CM को लास्ट में ज्वाइन करवाते हैं अपन. पहले तो अपन करते हैं, ये समझ जाना, थोड़ा कट गया है पॉइंट है. प्रूफ की बात करते हैं. प्रूफ देखो, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB इन ट्रायंगल ABC, और ये राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान देना यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC. M is midpoint of AB and MD is parallel to BC. MD is parallel to BC. तो यहाँ पे मैं कन्वर्स ले सकता हूँ मिड पॉइंट का यूज. मिड पॉइंट का कन्वर्स यूज ले रहा हूँ, तो यूजिंग और बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम. उससे अपन क्या बोल सकते हैं, ये मिड पॉइंट ये इसके पैरेलल, तो D क्या होगा? D इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC. पहला तो प्रूव हुआ, ये था फर्स्ट. नाउ सेकंड. ठीक है, यहाँ तक फर्स्ट प्रूव होगा. सेकंड की बात करें तो ये देखो, ये इसके पैरेलल है. हियर DM इज पैरेलल टू CB और BC, जो भी आप लिखना चाहो. तो इसका और इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, बिकॉज राइट एंगल. सो एंगल, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर अलाइड एंगल और एडसेंट एंगल. अलाइड एंगल्स और एडसेंट एंगल्स. ठीक है. एंगल 1 का हमें पता नहीं है, एंगल 2 की वैल्यू 90 डिग्री दे रखा अपने को क्लियरली. देयरफॉर एंगल 1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 minus 90, implies that angle 1 is equals to 90 degree. एंगल 1 कितना आया? 90 डिग्री. अब एंगल 190 होने का मतलब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर ही तो हुआ, 90 डिग्री बन रहा है. तो therefore DM is MD is perpendicular on AC. सेकेंड प्रूव हुआ. अब चलते हैं थर्ड पे. थर्ड पे हमें प्रूव करना है CM इज इक्वल्स टू AM. तो ये 90 है, तो भैया ये भी तो 90 होगा ना, ये दोनों 90 के होंगे. चलिए फिर करते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ADM. ध्यान देना, कौन सा? फ्रॉम ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM. चेक करो एक बार आप वहां से. ADM एंड CDM. AD इज इक्वल्स टू DC. AD इज इक्वल्स टू DC. हमने अभी प्रूव किया है D इज मिड पॉइंट ऑफ AC. D मिड पॉइंट होगा AC का, तो AD और DC क्या होंगे? इक्वल होंगे. AD इज इक्वल्स टू DC. इट इज प्रूव्ड.
सेकेंड अपन चलते हैं DM, देखो दोनों में कॉमन है, DM इज इक्वल्स टू DM, दीज आर कॉमन। एंगल ADM, एंगल ADM इज इक्वल्स टू एंगल CDM इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये अपन ने रिसेंटली प्रूव किया है, यहाँ से इट इज प्रूव। ठीक है, देखो ध्यान से, साइड देन एंगल देन साइड, SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, SAS क्राइटेरिया ऑफ congruency, SS criteria of congruency, we can say that triangle ADM is congruent to triangle ADM is congruent to CDM। बात समझ गए, ट्राइंगल CDM। और अपन यहाँ से ये बोल सकते हैं AM is equals to CM, AM is equals to CM by CPCT, by CPCT, AM is equals to CM। Let's suppose this is the equation number first। हमने एक पार्ट प्रूव कर लिया है, CM is equals to MA या AM जो भी है। अब देखो हमें ये दे रखा है, we know that AM is equals to, या फिर यूँ बोल दूँ मैं, AB is equals to AM plus MB, बोल सकते हैं ना। AB is sum of AM and MB, implies that AB is equals to AM and MB is equals to AM, क्योंकि दोनों इक्वल है तो MB की जगह मैंने AM अप्लाई कर दिया। Then twice of AM is equals to AB, implies that AM is equals to half of, ये डिनोमिनेटर में आएगा, AB। let's suppose this is the equation number first। बात समझ में आई? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, AM is equals to CM and AM is also equals to half of AB, hence 2। Finally we have completed the exercise 8.2 as well as chapter 8 also, and in the next video I am starting a new chapter with the new concept. So please friend, pause this and note it down and enjoy your online classes.